روہی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون لائرز ونگ ملتان ڈویژن نے وکلا سپریم کورٹ کے فیصلے کو پاکستان کے مستقبل اور آئین کی بالادستی کے لیے خوش آئند قرار دے دیا ہے۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا ہے، جانیے ماہر عمران کی رپورٹ۔ پاکستان مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے ڈویژنل عہدیداران نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آئین کی بالادستی کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے تاریخ ساز فیصلے پر عدلیہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میاں شہباز شریفی ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے۔ تلوار طاقتور ہے، اس پہ ثابت کیا کہ نہیں قلم طاقتور ہے۔ کل قلم کی جیت تھی اور کل تلوار کی ہار کا دن تھا۔ اور غالب نے جو کہا تھا کہ باغیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، آئین کو کھلواڑ بنا لیا تھا، بچوں کا کھیل بنا لیا گیا تھا اور اس کو تحفظ دیا سپریم کورٹ نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کامیابی میں مسلم لیگ نون نے بڑا فعال کردار انجام دیا۔ لائرز ونگ کے وکلا کا کہنا تھا کہ اپوزیشن رہنماؤں نے ملک میں بڑھتی مہنگائی اور افراتفری کے سبب تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ آئین کی بالادستی اور ملکی سلامتی کے لیے ایسے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے جمہوریت پر شب خون مارنے کی کوشش کی، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ صحیح فیصلہ کیا، صحیح سٹیپ اٹھایا اور ان ٹائم بر وقت فیصلہ کیا۔ وہ کہتے ہیں ڈیلے دا جسٹس ڈینائی دا جسٹس، اس کی تردید کر دی، ان وقت فیصلہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش آئند بات ہے اور الحمدللہ پاکستان قائم دائم رہے گا، مسلم لیگ نے بنایا ہے۔ لائرز ونگ کی پریس کانفرنس میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون سید ضیاء حیدر زیدی سمیت ایڈوکیٹ عامر حسین بھٹا، راؤ افتخار لیاقت، رانا مقصود افضل، عمر کمبو و دیگر وکلاء نے شرکت کی۔ اختتام پر ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ مہر عمران نواز، ملتان۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سپریم کورٹ کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر خوشی کا اظہار۔ کارکنوں کی جانب سے پارٹی کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو فروغ دیا ہے۔ صدر جنوبی پنجاب عارف شاہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ آج عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، ایسا کہنا ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سپریم کورٹ کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کارکنوں کی جانب سے پارٹی کے حق میں نعرے لگائے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کو فروغ دیتی ہے۔ صدر جنوبی پنجاب عارف شاہ کا ایسا کہنا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔ آج عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوگی، حاجی شاہد رضا صدیقی کا ایسا کہنا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کے تبادلوں کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد صوبائی کابینہ تحلیل ہو چکی ہے اور وزیر اعلیٰ کے اختیارات محدود ہو چکے ہیں۔ قانونی طور پر یہ تبادلے نہیں کیے جا سکتے۔ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ یہ تبادلے وزیر اعلیٰ کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے کیے جا رہے ہیں، جس کو روکا جانا ضروری ہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی قائد حزب اختلاف کی جانب سے خط ارسال کیا گیا، جس میں قانونی پوزیشن واضح کی گئی۔ بات کریں کہ مہنگائی کی، مہنگائی رے مہنگائی، ہر سو مچ گئی تہائی۔ رحمتوں بھرے مہینے میں بھی شہریوں کو سکون نہیں ملا۔ 7 دنوں کے دوران 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ درجہ اول کوکنگ آئل 9 روپے اور گھی 7 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 42 روپے تک مہنگا ہوا۔ رحیم یار خان میں لیمو کی قیمت 270 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ دیسی لیمو 42 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگے۔ چائنا لیمو 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ سفید چنا 280 سے 320 روپے فی کلو، دال مسور 180 سے 230 روپے، دال ماش 200۔ انتظامیہ سے مہنگائی کے جن کو قابو کرنے کی اپیل۔ گرمیوں میں بھی انڈے مہنگے ہو گئے۔ ملتان میں 40 روپے اضافے سے انڈے 120 روپے فی درجن ہو گئے۔ پیٹی کی قیمت 3000 سے بڑھ کر 3400 روپے ہو گئی ہے۔ یہ رپورٹ۔ مہنگائی کے پیدر پہ وار، عام آدمی کا جینا ہو گیا دشوار۔ انڈے 80 روپے سے بڑھ کر 120 روپے فی درجن ہو گئے، جبکہ پیٹی کی قیمت 3000 سے بڑھ کر 3400 روپے پر جا پہنچی۔ انڈے کی بڑھتی قیمت پر ملتانی شہری پھٹ پڑے۔ 120 روپے درجن بتا رہے ہیں۔ تو پہلے گرمیوں میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ 60-70 روپے درجن ہوتا تھا، ابھی 120 روپے ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر دکاندار بھی پریشان دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرمیوں میں انڈے کا ریٹ 60 روپے فی درجن ہوتا ہے، جبکہ اب 120 روپے پر پہنچ گیا ہے۔
माह रमजान में भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना महंगा अंडा नहीं बेचा। 200 रुपये दर्जन तक भी मैंने इसको बेचा है। और अब देखें कितनी गर्मी और फिर माह रमज़ान बरकत वाला रहमत वाला महीना है, उसमें 120 रुपये दर्जन है। अब यकीन जाने हम जो है ना इस चीज़ से बड़े परेशान हैं। परेशान हाल शहरियों और दुकानदारों ने आला हुक्काम से महंगाई का जिन कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। इंतजामिया आवाम को रमजान बाजार के जरिए रिलीफ देने में नाकाम हो गई। विलायताबाद रमजान बाजार मुल्तान में शेख रुनोश की खरीदारी के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। सुहिरा तारिक की रिपोर्ट। रमजान बाजार अवाम को रिलीफ फ्राहम करने में कामयाब न हो सके। विलायताबाद रमजान बाजार में खरीदारों का रश लग गया। रमजान बाजार में चीनी और रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के लिए शहरी बुजुर्ग और खवातीन लंबी लंबी लाइनों में कई कई घंटे खड़े रहने पर मजबूर रहते हैं। कतारों में खड़े शहरी इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े। यहाँ पर तकरीबन अभी मुझे खड़े हुए कुछ 40-45 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये यानी कि 1.25 घंटे में ये बारी आएगी। शहरियों का कहना था कि रोजे की हालत में लंबी कतारों में खड़े रहना मुश्किल है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी बुनियादी अशिया के लिए भी लाइन में बारी का इंतजार करना पड़ता है। बुजुर्ग अफराद को भी गर्मी में काफी देर इंतजार करने के बाद सामान फराहम किया जाता है। सब्जी भी लाइन से ही लो और उसे अपनी मर्जी से बनाना उठाया कुछ उठाया है तो भाई इसको देखो नहीं, जितना भी गला सड़ा है ऐसे का ऐसे ही। अगर पूरे गुच्छी में जना अगर 2 दर्जन भी आ गया ना आपको लेने हैं। मुश्किल होती है आपको लाइन में? और क्या, क्यों नहीं होती मुश्किल। अब ये हमारी एजा लाइन लग देंगी। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान है, ऊपर से रमजान बाजार इंतजामिया यहाँ लंबी कतारों में इंतजार करा के मजीद ख्वार कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीरा तारिक, रोही, मुल्तान। आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। दुकानदार कहते हैं कि कीमतें बढ़ने से कारोबार तबाह हो गया है। माज बिन शफीक से जानते हैं। माज, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आम आदमी की सवारी मोटरसाइकिल भी महंगाई के शिकंजे में जकड़ी जा चुकी है। एक जानिब मोटरसाइकिलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब मोटरसाइकिल के जो पार्ट्स हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से दुकानदार हजरात भी परेशान नजर आते हैं, जबकि खरीदार हजरात भी काफ़ी तशवीश में मुब्तला हैं। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है? 50 से 80% तक इजाफा हुआ है और ख़रीदार तो नज़र ही नहीं आता मार्केट में। टायर ट्यूब्स हैं 1200 रुपये से ले जो रेट था वो 1600 तक जा चुका है। चैन गरारी सेट था जो 400 का था तो वो 800 से 900 रुपये का। इसी तरीके इंजन ऑयल है जो कि 400 से 500 रुपये पर कार्टन और 100 रुपये पर डब्बा तकरीबन रेट इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरीके ब्रेक शूज़ हैं और जो मेन रनिंग आइटम्स हैं उनमें 80% तक का इजाफा हुआ है, जो कि कुछ रुकने का नाम कहीं नहीं ले रहा और ना ही नज़र आ रहा है कि यह कहीं रुकेगा। बिल्कुल यही कहा जा रहा है दुकानदारों की जानिब से भी कि मोटरसाइकिल के पार्ट्स में जो सबसे ज्यादा रनिंग आइटम्स हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, जबकि दुकानदार हजरात और शहरियों की जानिब से इंतजामिया से रिलीफ फराहम। माज बिन शफीक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुड़पक्का के इलाके नौकाबिल वाम में नाकिस और गैर मियारी ज़राई अद्वियात से तरबूज की फसल तबाह हो गई है। किसानों ने गैर मियारी ज़राई अद्वियात बेचने वालों और महकमा ज़राअत के खिलाफ एहतजाज किया है। इस मौके पर एक किसान का कहना था कि मियां ट्रेडर्स मेल्सी से स्प्रे खरीदी थी, ना कि स्प्रे ने सुंडियों को खत्म करने के बजाय फसल ही खत्म कर दी। किसानों का कहना था कि उसकी 5 एकड़ तरबूज की फसल तबाह होने से 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। गैर मियारी और फसलों के लिए मुज़र तरीन असरात रखने वाली ज़राई अद्वियात फरोख्त मामूल बन चुका। महकमा ज़राअत के अफसरान इस मकरू अमल की पुष्टपनाही कर रहे हैं। ज़राई अद्वियात के कारोबार करने वाले ज़्यादातर अफराद ना तजर्बाकार हैं। डीलर्स ज़राई मसाइल से बिल्कुल नाआशना हैं। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए अल्टीमेटम, महकमों को जून से कबल स्कीमों के मुख्तलिफ बजट खर्च करने की हिदायत दी गई है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की सरबराही में कौमी तामीर नौ के महकमों का इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मोहम्मद इरफान की शिरकत। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का कहना था कि फंड्स लैप्स होने से बचाने के लिए तरक्याती मनसूबों पर काम तेज किया जाए। रोड्स, वासा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों को तरजीही बुनियादों तरजीह बनाया जाए। निस्टर 2 और सब सेक्रेटरीट बिल्डिंग का मंसूबा तेजी से जारी है। गुंजानाबाद इलाकों की रोड्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी गई।
मुल्तान में चौक को महारावाला की रीडिजाइनिंग और ब्यूटिफिकेशन का आगाज कर दिया गया है। एसी सिटी ख्वाजा उमैर महमूद ने चौक को महारावाला का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर चौक को महारावाला पर मौसर ट्रैफिक प्लानिंग की जाएगी। एसी सिटी का ऐसा कहना है ग्रीन बेल्ट्स की अपग्रेडेशन और फ्लाईओवर्स को कल्चरल रंगों में ढाला जाए। चौक को कुशादा करके ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर की जाए। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर मुख्तलिफ चौकों पर तेजी से तरक्याती काम जारी है। बिहाड़ी में गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी ने मौजा फैजवा में गंदम काट कर इफ्तिताह कर दिया। किसान ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार करते रहे। जिला बिहाड़ी में गंदम की कटाई का बाकायदा आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर खिजर अफजाल चौधरी ने मौजा फैजवा में गंदम काटकर कटाई का इफ्तिताह किया। इससे कबल डीसी गंदम की कटाई के लिए पहुंचे तो काश्तकारों ने फूलों की पत्तियां निछावर कर इनका इस्तकबाल किया और रिवायती पगड़ी भी पहनाई। खिजर अफजाल चौधरी का कहना था कि गंदम की कटाई के साथ बाकायदा खरीदारी का भी आगाज हो चुका है। तहसील बिहाड़ी में 1,28,000 मैट्रिक टन गंदम के मुकर्ररा हदफ को बआसानी पूरा कर लिया जाएगा। गंदम की कटाई जो है वो एक बड़ा खुशी का मौका होता है। हमने इसकी खरीदारी का जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट कर दिया है। 2200 रुपये फी मन सरकार ने इसकी जो है वो कीमत मुख्तस की है और 1,28,000 मैट्रिक टन का हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह ताला फसल की सूरत हाल को देखते हुए मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ना सिर्फ हम अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। किसानों का कहना था कि इस बार गंदम की पैदावार अच्छी हुई है और हुकूमत की तरफ से रेट भी अच्छा दिया गया है। डीसी साहब ने कनक दा इफ्तिताह किया जी ते अल्लाह तबारक व तआला जी फसल अच्छी खड़ी है, बंपर कराप है जी। ते उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस साल सारे टारगेट अचीव होंगे जिहड़े गवर्नमेंट ने मुकर्रर कीते। किसान ढोल की थाप पर रिवायती अंदाज में झूमर और भंगे डालकर अपनी खुशी का इजहार करते रहे। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, बिहाड़ी। रहीमियान खान में महकमा फूड के ज़रिए तमाम 21 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीमियान खान में गंदम की खरीदारी का आगाज हो गया। जिले की चारों तहसीलों में 21 गंदम खरीदारी मराकज़ कायम कर दिए गए। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर जाम मोहम्मद अजमल का कहना था कि जिले का गंदम खरीदारी टारगेट 14 लाख बोरी है। अभी तक 4,33,342 बारदाना तकसीम कर चुके हैं। मराकज़ खरीदारी पर जिम्मेदारों व किसानों के लिए बैठने, पार्किंग, वाशरूम्स और पानी समेत दीगर इंतजामात अच्छे तरीके से किए गए हैं। 1,40,000 टन जो है मैट्रिक टन है टारगेट, यानी 14 लाख बोरी। 21 सेंटर एस्टेब्लिश हुए हैं और ओपन पॉलिसी है। पहला अशरा जारी है। जनरल सेक्रेटरी इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान अल्लामा गुलाम मुस्तफा अंसारी की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं खुदा की जानिब से उम्मत मुस्लिमा को बख्शने का रमजान बहाना है। शहरी इस बाबरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें ताकि रब की खुशनूदी हासिल कर सकें। वसीम शहजाद से जानते हैं। जी वसीम। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो है वो जारी है और बात करते चले मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मजलिस इत्तेहादुल मोमिनीन पाकिस्तान के गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, क्या कहेंगे, रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जो है वो जारी है, आशिकान मुस्तफ़ा इस अशरे को किस तरह से गुजारे? क्या खुदा गवाह है कि अगर आप तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम को पढ़ें तो आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की उम्मत पर रोज़ा फ़र्ज नहीं था। किसी नबी की उम्मत पे फर्ज नहीं था, हर नबी पर रोजे फर्ज थे। यानी आप जरा मोमिन की शान का मुलाहिजा फरमाया कि खुदा ने हमें क्या दर्जा दिया है। वो काम जो अल्लाह पहले अंबिया अलैहिस्सलाम से लेता था वो हमें बहैसियत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने वो काम हमसे लिया है। यानी हमें किस दर्जे पे जाके खड़ा किया उसने। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुम पर पहलों पर जैसे वाजिब था। वहां पर अहले ईमान से मुराद आम उम्मती नहीं है, अंबिया अलैहिस्सलाम है। तो अल्लाह ने जब हमसे ये काम जो खुदा अंबिया अलैहिस्सलाम से लेता था हमसे तकाजा कर रहा है तो हमें इस बात का भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये उसकी रहमत वासिया है, ये उसका लुत्फ़ व करम है, वो उसका लुत्फ़ खास है कि जो काम वो अंबिया अलैहिस्सलाम से लेता था उसने हमसे लिया है। अल्लामा इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी, जिनका इस हवाले से कहना है कि पहला अशरा जो है वो रहमतों का अशरा है, आशिकान मुस्तफ़ा। शुक्रिया वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही से फिल वक्त इतना है।